Hi everyone. So today we're going to discuss. So we are live in both in Zoom and as well as on YouTube. So we understand this thing that right now scenario is very difficult for you guys. आप लोगों को नहीं पता कि क्या आपको भी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, आपको नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करो नहीं करो, जाओ कहाँ जाओ. And we know all of us are also protesting over Twitter and things. We are trying to raise a voice saying that postpone the need, but there is no information from the side of the government about the postponement of need. So इस सिनेरियो में आप लोग जितने लोग हैं अभी, आई एम अज्यूमिंग दैट ऑल ऑफ यू गाइज हु हैव जॉइंड अस राइट नाउ, those students are those who are thinking about going abroad, right? आप लोग ये सोचो अगर हमारे इंडिया में नहीं होता है तो हम अब्रॉड जाएं. अभी because NEET is not exempted for MBBS abroad, okay, and also that NEET postponed भी नहीं है. 13 सितंबर को अभी बोला हुआ है कि NEET होगा. सो नीट अगर हो जाता है 13 सितंबर को, तो ऑफकोर्स मैंने आपको अपनी वीडियो में जो मैंने यूट्यूब पे डाली थी, in that video I said that if NEET will be postponed, then NEET exemption is very much clear. But NEET is not getting postponed. NEET, they are saying that they will conduct NEET on 13th of September. So हर सिनारियो को हमें समझना होगा कि if NEET is postponed, if NEET is not postponed, if NEET exemption will be given for MBBS abroad, if it not will be given for MBBS abroad. We need to be prepared for all the situations. We can't be like that. हम लोग ये नहीं सोच सकते, वेट नहीं कर सकते. We need to take action. We need to do whatever we can do for this reason. Okay, so to begin my presentation, first of all, I want to ask all the students who are on YouTube that we are giving link on the live chat. अगर आप presentation देखना चाहते हैं, you will see me, but you will not be able to see the presentation which I am putting here. So basically आप लोग join कर लीजिए. यहाँ पे I'll ask my team to put the link for that on the live chat, or maybe I can do it too. Let me just check. Just hold on. So those who are on YouTube, we have seats available in the webinar, so you guys can join, and also you will be able to see the presentation, which is very important presentation. इससे आपके सारे doubts clear हो जाएंगे about this. And let me see. Yeah. So YouTube की questions भी मैं लूंगी अभी, और अभी मैं कर रही हूँ presentation शुरू. So let's start that first, and then we will come into question answer sessions. Hope you guys are able to see that. So welcome to the webinar. This webinar is all about how to select your MBBS abroad university in current NEET scenario. So इस सिनारियो में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चीजें कैसे आपको अभी क्या जज कर रहे हो आप, आपको क्या समझ आ रहा है, आपको क्या लगता है, आपके साथ आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे for sure. Let's start with that. NEET exemption. What is NEET exemption basically? NEET exemption is like 2018 में एक बार NEET exemption मिला था, क्योंकि 2018 में पहली बार NEET was made compulsory for students who want to go to study MBBS abroad. Earlier, उससे पहले तक नीट की जरूरत नहीं होती थी. आपने नीट दिया है नहीं दिया है, आपने फॉर्म भरा है नहीं भरा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था. 2018 में after the registration ended, the MCI told that NEET will be compulsory now from now on. So इस वजह से बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन रेज किया था कि हमें पहले नहीं पता था कि ऐसा जरूरी हो जाएगा, हमने तो नीट का फॉर्म ही नहीं भरा, हम तो अब्रॉड जाना चाहते थे. इस क्वेश्चंस के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये पिटीशन लगाई गई, या पीएल तो नहीं थी, वो शायद पिटीशन ही थी, तो उसमें ये बोला गया था कि ठीक है, हमें सही टाइम पे इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को नहीं दी थी, इस वजह से दे विल गेट वन टाइम एग्जेम्पशन. हुआ 2019 में जितने भी स्टूडेंट्स अब्रॉड गए, ऑल द स्टूडेंट्स वेंट आफ्टर
being NEET qualified only. Okay. So now what is the scenario basically right now is that NEET is compulsory for abroad. Okay. So now NEET is compulsory for abroad, लेकिन हमें exemption मिलना चाहिए because right now NEET का कुछ समझ में नहीं आ रहा है. There must be students who are not comfortable to give NEET at this corona situation. They are worried about this that they might catch corona. So इस वजह से क्योंकि अभी जो पिटीशन था वो प्ली थी डिसमिस की है सुप्रीम कोर्ट ने कि पोस्टपोन नहीं होगा एंड द डिसीजन स्टेज विद एनटीए. एनटीए कह रहा है कि वो इस चीज को कंडक्ट करवा सकते हैं. सो 13 सितंबर इज द नीट एग्जाम डेट. 13 सितंबर से पहले अगर एग्जामिनेशन मिलता है तो ही आप स्किप कर सकते हो नीट देना. अगर 13 सितंबर के बाद होता है, मतलब 13 सितंबर नहीं होगा तो फिर कैसे आप लोग एग्जामिनेशन मांगोगे. ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझा दूं 13 सितंबर इज द डेट. नाउ देयर आर टू सिनेरियोस. If NEET exempted for MBBS abroad before 13, if NEET not exempted for MBBS abroad before 13. अगर 13 से पहले हमें पता चल जाता है कि नीट एग्जामिनेशन हमें मिल सकता है या मिलेगा या मिल जाता है हमें, तो you can skip giving NEET exam on 13 September. You don't have to give NEET examination. You can apply for MBBS abroad universities without NEET result. तो सेम एग्जामिनेशन अगर मिलेगा तो वो चीज हम अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज को एम्बेसी को दिखाएंगे, तब वो हमें आगे का प्रोसेस करने देंगे, जैसे वीजा लगवाना एंड ऑल दिस. बट इफ नीट नॉट exempted by 13th of September, so you would need to appear for NEET examination to qualify. ये तो है ही, अगर नीट हो गया तो फिर नीट का चाहिए. You can apply for your university for at least admission letter and invitation. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जाना तो है ही, तो आप अप्लाई तो करिए ही और इसमें दीजिए भी एग्जाम. अगर नहीं होता तो there is no way out, right? In both the scenarios, you should apply for admission abroad as soon as possible. If in your mind you have second option as abroad, then this is the last time going on. Deadlines are coming. Universities close भी हो सकती हैं. तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप जो है अप्लाई करने की सोच सकते हैं, अप्लाई करिए. आप लोगों को एक और बात बता सकती हूँ मैं आपको कि हो सकता है कि बाद में नीट कंडक्ट होने के बाद भी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एग्जेम्प्ट हो, क्योंकि कुछ पीआईएल्स कुछ पिटीशंस अभी भी हैं. लेकिन उस सिनेरियो में ये होगा जिन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ होगा, कहीं अपनी सीट बुक की हुई होगी, वो ही बच्चे जा पाएंगे. बिकॉज जो उस वक्त अप्लाई करेंगे वहां तक तो एप्लीकेशन की डेडलाइंस खत्म हो चुकी होंगी. ओके, सो you need to see this. My suggestion, if government does not postpone NEET, then you should appear in that if possible. Okay, जो बच्चों के लिए इम्पॉसिबल है कि नहीं हो पाएगा मैम, हम लोग बहुत दूर रहते हैं, फ्लड की कंडीशन है, ये वो भी परेशान ना हो. कुछ ना कुछ अगर मेरी भी जरूरत पड़ती है, आई विल हेल्प यू आउट गाइज हाउ टू गो फॉर दिस, हाउ टू पुट फॉर एग्जामिनेशन, और मे बी अब्रॉड जाने के लिए आप सिंगल पिटीशन भी लगा सकते हैं, वो चीज अलग है. लेकिन इफ यू कैन देन डेफिनेटली आपका रास्ता बहुत क्लियर हो जाएगा. आपको बस नीट को क्वालिफाई करना है, यू कैन गो अब्रॉड एंड स्टडी. ओके, द बेस्ट ऑप्शन टू अप्लाई राइट नाउ क्या है, अभी नीट हो रहा है नहीं हो रहा, क्या होगा कैसे होगा, तब तक आप कहीं पढ़ नहीं पाते ना, कहीं आप जा नहीं पा रहे ना, आप कोई पढ़ाई हो पा रही है आपकी, इंडिया का भी नहीं पता, अब्रॉड का भी नहीं पता. लेकिन एक ऑप्शन है जो जहां आप एग्जाम्प्ट हो या नहीं हो फिर भी आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं एमबीबीएस की. वो ऑप्शन है फिलीपींस. फिलीपींस क्यों ये ऑप्शन है, बिकॉज फिलीपींस जो भी बच्चे अभी 12th पास आउट है उन्हें करना होता है बीएस कोर्स, जो कि ऑनलाइन शुरू हो गया है ऑलरेडी. 17 अगस्त से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं. तो स्टूडेंट्स अभी से अपना जर्नी शुरू कर सकते हैं, पढ़ाई शुरू कर सकते हैं. सो व्हाई दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, लेट मी जस्ट गो अहेड एंड टेल यू व्हाई. ऐसे नहीं कि जस्ट बिकॉज मैं कह रही हूँ नहीं इट्स अ गुड ऑप्शन तो आप इसे एक्सेप्ट कर लो. नो, आई एम अ कंसल्टेंट, आई विल टेल यू व्हाई, आई विल गिव यू रीजंस एंड इफ यू लाइक इट देन यू कैन गो अहेड विद दैट. रीजन नंबर 1 इज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ठीक है, वहां पे 1.5 + 4 है. 4 is MD course, 1.5 is BS course, so 5.5 यानी और कंट्री के मुकाबले 6 महीने यहाँ पे कम लगते हैं.
shorter duration for time and BS course can be started without need. आप अभी से अपना क्लास शुरू कर सकते हैं BS कोर्स की, यानी कि आपका टाइम अगस्त से काउंट हो जाएगा. सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपका नीट रिजल्ट आएगा, तो 3 महीने आपके ये भी बच जाएंगे, ये भी यूटिलाइज हो जाएंगे और 1.5 का जो है उसमें काउंट होगा ये टाइम. ठीक है, दिस इज द एडमिशन प्रोसेस. इसे आप व्हाट्सएप पे अपने मंगवा सकते हैं हमारे काउंसलर्स को कॉन्टैक्ट करके. इसमें हम पूरा समझाते हैं कि भाई अगर आप पुणे कैंप, पहले क्या है पुणे कैंपस का था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं BS कोर्स चलता रहता है यहाँ पे. तो BS कोर्स के अपने टाइम जो 15-12 मंथ्स यहाँ पे लगते हैं वो आप कंज्यूम अभी से शुरू कर सकते हैं. नॉर्मली अगर देखा जाए तो जुलाई से शुरू होने वाला था BS कोर्स की क्लासेस, लेकिन अब नीट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो बच्चे अभी वो नहीं कर पाए. लेकिन अभी ऑनलाइन शुरू हो चुका है, एवरीडे अटेंडेंस लग रही है, स्टूडेंट्स की क्लासेस हो रही है, वो काउंट हो रहे हैं. ऑलरेडी फिलीपींस गवर्नमेंट सारा क्लासेस ले रही है स्टूडेंट्स की, फिलीपींस के ही टीचर्स पढ़ा रहे हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर 12th के बाद में लिखा हुआ है ऑनलाइन कोर्स अगस्त टू फेब तक चलेगा. ओके, अगस्त टू फेब. अगर इस साल नीट नहीं भी हुआ या आपने नहीं दिया, अगर आप नहीं देना चाहते हैं नीट 2020, फिलीपींस अलाउ करता है आपको कि आप 2021 का दे दें, क्योंकि आपका BS कोर्स के लिए नीट की जरूरत नहीं है और आप एग्जाम देने के बाद अगले साल जा सकते हो. बिकॉज आपको जो ज्वाइन करना है, नवंबर में ज्वाइन करना है MD कोर्स, तो आप यहाँ पे अपना नीट देके 2021 वाला देके जा सकते हैं. इस BS कोर्स में नीट की भी तैयारी कराई जाती है, तो इट्स वेरी गुड आइडिया, आप अभी से शुरू कर सकते हैं. सो इट्स अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइज. हाउ, उसके आगे भी मैं बताती हूँ. लो फीस स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटीज, ऐसी यूनिवर्सिटीज है लो फीस स्ट्रक्चर और MCR रिजल्ट बहुत अच्छा है. तो लो फीस स्ट्रक्चर मतलब क्या, मैं आपको बता देती हूँ. जैसे लाइजियम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, इसकी ट्यूशन फी पूरी, मतलब BS कोर्स की भी और MD कोर्स की भी 5.5 साल का पूरा ट्यूशन फीस आपका 16.75 लाख है. ओके, इसके अलावा जो फूडिंग और वैसा एक्सपेंस आता है वो आपका 1.5 लाख पर एनम आएगा, तो वो आप उसे जोड़ सकते हैं, 1.5 to 2 lakhs डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस ऑफ फूड एंड एवरीथिंग. तो सब कुछ मिलाकर सब 25 लाख में आपका खाना पीना सब हो जाएगा. ठीक है, इसका आंसर रिजल्ट जानने के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगी. अभी आप जितने भी लोगों ने वेबिनार ज्वाइन किया उनको एक प्रॉपर ईमेल आएगा फिलीपींस का, एंड यू गाइस कैन हैव द इंफॉर्मेशन. देन tuition fee package is only 17 lakhs, UV Gulas College of Medicine. आपको बता दूं, these are all English taught countries, English taught universities. आप search.wdoms, जो मैं हमेशा बताती हूँ, वहां पे जा सकते हैं और चीजें लिख सकते हैं. हाईएस्ट FMG पासिंग रेशियो, फिलीपींस का जो FMG पासिंग रेशियो है, एवरेज जो है 50% एंड अबव है. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फिलीपींस का 50.02 है और बाकी कंट्रीज का भी है. उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है बांग्लादेश, थर्ड नंबर पे अर्मेनिया. इसमें एक यूनिवर्सिटी अर्मेनिया की, लेकिन येरेवान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. बाकी किसी भी अर्मेनियन मेडिकल कॉलेज का MCI नहीं आया है अभी तक, मतलब यूनिवर्सिटीज का अभी बैच नहीं निकला है. तो ये सिर्फ एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसकी वजह से उसका रेशियो आ रहा है. उसके बाद आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूक्रेन, राइट. तो थर्ड नंबर पे यूक्रेन आता है और फोर्थ नंबर पे आता है आपका जॉर्जिया, फिफ्थ नंबर पे आता है कजाकिस्तान, सिक्स नंबर पे आता है रशिया. बहुत स्टूडेंट्स रशिया जाते हैं कि भाई रशिया, लेकिन रशिया में आपको बता दूं इट्स अ बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी. 90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर बायलिंगुअल. दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज लेसर. आप देख सकते हैं कि इतनी सारी बच्चे जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जो होती है, लेकिन आप देखो कितना फर्क है यूक्रेन और रशिया के पासिंग परसेंटेज में. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग रादर देन रशिया, जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे हिसाब से आपको रशिया नहीं चूज करना चाहिए. आपको यूक्रेन, आप बेलारूस चूज कर सकते हैं, यूक्रेन चूज कर सकते हैं, कजाकिस्तान चूज कर सकते हैं, किर्गिस्तान. और मैं आपको बता दूं बेलारूस में सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज हैं और तब भी उनका रिजल्ट 21.66 है. और रशिया में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है फिर भी उनका रिजल्ट 24.20. देयर इज अ रीजन फॉर दैट. देन कजाकिस्तान, देन किर्गिस्तान का भी 19.79% है. ओके, so the highest is Philippines in any case.
और अगर आप लोग नीट क्वालिफाई कर लेते हैं और नीट हो जाता है, आप क्वालिफाई करते तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, ठीक है। तो जो लोग कंफर्टेबल नहीं है वो अभी फिलीपींस को ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट पासिंग रेशियो यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस अंडर 23 लाख ट्यूशन फी। अब मैं आपको जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, सबसे बेस्ट पासिंग रेशियो है, उनका भी बजट केवल 23 लाख रुपए है, ठीक है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन इनकॉर्पोरेशन, जिसका एमसीआई पासिंग है। मैंने एग्जैक्टली रिपोर्ट से ही स्क्रीनशॉट लिया है। 848 स्टूडेंट्स ने अपियर किया था, 462 ने क्लियर कर दिया, तो 54.48 रेशियो है, पासिंग रेशियो है। आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा पासिंग रेशियो है दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन का। यही रीजन है दैट वी आर सजेस्टिंग यू टू गो टू फिलीपींस, और कुछ नहीं। मैं खुद देख के आ चुकी हूँ। ये यहाँ इस बिल्डिंग में मैं खुद गई थी, यहाँ पे सब कुछ है। आपको अनाटॉमी बहुत अच्छा लैब मिलेगा, आपको इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स मिलेंगे, ऐसे भी टीचर्स मिलेंगे जो कि खुद यूएसएमएल ग्रेजुएट्स हैं। और अगर आपको कंफर्म करना हो तो आई कैन हैव अ जूम वेबिनार अगेन विद वन ऑफ द स्टूडेंट्स। Those who are raising hands, just give me a moment. I am about to finish my presentation. Once the presentation is finished, आपके क्वेश्चंस मैं लेना शुरू कर दूंगी। बहुत सारे लोग रेज हैंड्स कर रहे हैं, just wait for few minutes more. Just wait. I'll come back to you guys. I'll come back to you. Yeah. देन आता है यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ। जो दवाओ है ना गाइस, वो दवाओ दूसरे उसमें है, मनीला में नहीं है, एक अलग चीज है। और जो यूनिवर्सिटी परपेचुअल हेल्थ है, सो 206 स्टूडेंट्स ने अपियर किया था एमसी एग्जाम में, 88 बच्चों ने क्लियर कर दिया। दैट मेक्स इट 42.72% पासिंग रेशियो। ओके, तो दैट इज वन थिंग। आपको सारी यूनिवर्सिटी का मैंने बता दिया, आपको बजट भी देख सकते हो, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज आप चेक करोगे वो सारी यूनिवर्सिटीज के एमसीआई रिजल्ट हम आपको बताएंगे। तो देयर इज अ रीजन। दूसरी चीज मैं बता दूं, इट्स अ ट्रॉपिकल climate country, hence the diseases are same just like in India. So you will get the patient with the similar disease pattern just like in India. That's why the MCI passing ratio is better of Philippines. So what do you have to do? For example, अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो सबसे पहले आपको बुक माई यूनिवर्सिटी की ऐप, हमारी कंपनी की ऐप है, जिसमें सारी चीजें, सारी डिटेल्स वगैरह, फीस स्ट्रक्चर सब अपडेटेड है। पहली बार आपको क्वेश्चन है, अगर किसी भी चीज से, आप एक बार बुक माई यूनिवर्सिटी ऐप खोल के जरूर देखें। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सब चीजें, सब डिटेल्स वगैरह मिल जाती है स्टूडेंट्स को, और फीस स्ट्रक्चर मिल जाता है, और इसी ऐप से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें अप्लाई करिए और अपनी सीट बुक करवा लीजिए। आपका लेटर विद इन 2 to 3 days आ जाएगा। दैट मीन्स यू आर गुड टू गो एंड योर बीएस कोर्स कैन बी स्टार्टेड विद इन 2-3 days. You can start your BS course, your months will be counted, and आप 3 महीने और सेव करेंगे अपना, अभी से पढ़ाई होगी, और आप नेक्स्ट ईयर चाहे तो नेक्स्ट ईयर वाला दे सकते हैं और अपनी MD कोर्स 2021 में शुरू कर सकते हैं।